Hello dear students, today chapter number 6 differential equations exercise 6.3. See question number first, in each of the following verify whether the given expression is a solution of differential equation. See question number first, xy equal to log of y plus c and given differential equation is dy upon dx equals y square upon 1 minus xy. This means this is the given equation and we have to verify dy upon dx equal to y square upon 1 minus xy. Now see the solution, since xy equal to log of y plus c, where c is a constant. So differentiating this equation with respect to x, we get here using u into v formula. For u into v, here x into d by dx of y, that is dy upon dx, plus y into derivative of x is 1 equals derivative of log of y with respect to x 1 upon y into dy by dx plus d by dx of constant term is 0. So we have x into dy by dx plus y equals 1 upon y dy by dx. Now multiplying throughout by y, we get xy into dy by dx. Here y into y becomes y square equals dy upon dx. Therefore, y square equals dy upon dx minus xy into dy by dx. So taking x into y dy by dx on the right hand side. Now taking x here dy by dx common. So we get 1 minus xy multiplied by dy upon dx. But we want to prove that dy upon dx equals y square upon 1 minus xy. So we have here dy by dx equals y square and taking 1 minus xy on the left hand side. So we get dy upon dx equal to y square upon 1 minus xy. Hence the equation is verified which is given in the question. So if xy equal to log of y plus c, then dy by dx equal to y square upon 1 minus xy, which is verified here. Now see its third question first. Here we solve third question and then second. Y equal to e raised to minus x plus ax plus b. So differentiating with respect to x, we get dy upon dx equals derivative of e raised to minus x is e raised to minus x into minus 1 plus a into 1, that is a, and the derivative of b is 0. Now differentiating again with respect to x, we get d2i upon dx2 equals e raised to minus x into minus 1 into minus 1, that is plus 1. So no meaning here in e raised to minus x into 1, and derivative of a with respect to x is 0. So we have d2i upon dx2 equal to e raised to minus x, but it can be written as 1 upon e raised to x. So d2i upon dx2 equals 1 upon e raised to x. By multiplication e raised to x to the left hand side, we get e raised to x into d2i upon dx2 equals 1. Hence verified this differential equation. Now it's a second question here. Y equal to whole square of sine inverse x plus c, where c is a constant. And we have to verify 1 minus x square into d2y upon dx2 minus x into dy by dx equals 2. Differentiating with respect to x, we get dy upon dx equals d by dx of sine inverse x is 2 into sine inverse x by chain rule into d by dx of sine inverse x. But derivative of constant term is 0. So it is equal to 2 sine inverse x as it is from here. Derivative of sine inverse x is 1 upon root of 1 minus x square. Now squaring on both sides, we get square of dy by dx, that is dy by dx the whole square, equals square of this term 4 into sine inverse x the whole square into 1 upon 1 minus x square. So we should write here on squaring. After that, we get here dy by dx whole square equals 4 into sine inverse x whole square into 1 upon 1 minus x square. Then multiplying throughout by 1 minus x square, we get 1 minus x square into square of dy by dx
equals 4 into sin inverse x the whole square. But value of sin inverse x whole square is from the given equation y minus c. Sin inverse x whole square is y minus c. So we should write the value of sin inverse x whole square from the given equation, means from here. So we get 1 minus x square into dy by dx the whole square equals 4 multiplied by y minus c or minus c plus y. Now differentiating this equation with respect to x, we get using u into v here, 1 minus x square into 2 dy by dx into d2y by dx2 by chain rule plus dy by dx the whole square into derivative of 1 minus x square is 0 minus 2x equals 4 into dy by dx, because derivative of minus c is 0. So here we get 4 into derivative of y dy by dx. Now dividing by 2 into dy by dx, dividing by 2 into dy by dx. So we get 1 minus x square into d2y upon dx2 minus x into dy by dx equals 2. Hence verified the differential equation. Here dividing by 2 into dy by dx, so 2 dy by dx will be cancelled. Here also 2 and dy by dx one time cancelled, and plus into minus becomes minus. X is remaining, so x into dy by dx. And here 2 2 are 4 and dy by dx is cancelled, so we get 2 only. So we have differential equation 1 minus x square into d2y upon dx2 minus x into dy by dx equals 2. So they are very important question for the board exams. So you should study seriously all these questions clearly. Now question number 4. What is in question number 4? Only y equal to x raised to m. Very interesting question. Y equal to x to the power m. If y equal to x raised to m given, so what will happen? We have to verify x square into d2y upon dx2 minus mx dy by dx plus m into y equal to 0. We have to verify this differential equation with the help of y equal to x to the power m only. If y equal to x raised to m, so how will you verify this given differential equation? Means x square into d2y upon dx2 minus mx into dy by dx plus my equal to 0. आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ट्रिकी. Differentiating this equation means differentiating y equal to x raised to m with respect to x, we get. So what we get here, now see, derivative of y dy by dx and derivative of x to the power m is m into x raised to m minus 1. But m into x raised to m minus 1 can be written as m into x to the power m upon x by indices property. Here x raised to m minus 1 means x raised to m into x raised to minus 1, and x raised to minus 1 is 1 upon x. So dy by dx equal to m into x to the power m upon x. But value of x raised to m from the question, you can check here, value of x to the power m is given already y, x raised to m is y. So we should substitute this value. So we get here m into x raised to m upon x. So value of x raised to m is y. It is given in the question. So this will be m into y upon x. Multiplying throughout by x, we get x into dy by dx equal to m into y, because m into y upon x. So taking x on the left hand side, so it is multiplied. So x into dy by dx equal to m into y, and let it be equation first. It is very clear, taking equation first here. So differentiating with respect to x, we get using u into v formula, u into v, that is x into d2y upon dx2
plus dy by dx into 1, that is dy by dx only, equals m into dy upon dx. So x into d2y upon dx2 plus dy by dx equals m into dy upon dx. Therefore, x into d2y upon dx2 plus m into y upon x, because dy by dx, value of dy by dx is what? M into y upon x. You can say from here r from equation first. Now check this once again. The value of dy by dx for this step only, value of dy by dx is my upon x from equation first. We should substitute here my upon x equal to m into dy by dx as it is. Now here denominator contains x, so multiplying throughout by x, we get x into x square into d2y upon dx2 as it is, plus my equal to m into x into dy by dx. Therefore, the differential equation is x square into d2y upon dx2 minus my into dy by dx plus my equal to 0, which is required differential equation, and given equation is verified. So dear student, see once again this question actual condition of the solution here completed इन दिस स्टेप, यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है इन द सेकंड डेरिवेटिव, लेकिन जो इक्वेशन में वेरीफाई करना है वो इक्वेशन यहाँ पर अभी तक नहीं आया हुआ है। तो ये ध्यान देने की बात है कि अगर हमें वो इक्वेशन मिला ही नहीं जो लाना है तो वी शुड ट्राई फॉर दैट इक्वेशन। उस इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास जो रूल्स है, रूल्स रेगुलेशन या गिवन क्वेश्चन में हमें कैसे सॉल्व करना है, तो देखो अगर हम लोग ये इक्वेशन को यहाँ पर छोड़ देते, लीव द इक्वेशन हियर, x इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर मिल जाता है x इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वन माइनस एम इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो एक सोल्यूशन इसका ये भी है, अगर मान लो कि सेकंड डेरिवेटिव में है लेकिन वन माइनस एम इंटू डी वाई बाई डी एक्स दिया तो हम लोग वहां पर भी लीव कर सकते हैं, बट वो कब कर सकते हैं? जब हमारे पास प्रूव दैट या वेरीफाई नहीं करके दिया होगा, जैसे कोई ऑप्शन है या फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, जस्ट हमें उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, उसको वहां पर छोड़ देना है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वहां पर मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम लोग वहां पर लीव कर सकते थे। इन केस अगर हमें m को एलिमिनेट करना है, मान लो कि हमारा ऐसा एक आंसर है नॉट इन टर्म्स ऑफ m, तो हमें m की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? m वैल्यू ऑफ m, तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो वो वैल्यू को हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे x अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते ही x अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा और y को मल्टीप्लाई थ्रू आउट कर दोगे, फिर एक न्यू इक्वेशन जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके भी सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एज वेल एज फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, और कॉलेज के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही ट्विस्टिंग होती है, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास 3 to 4 आंसर्स और डिफरेंट आंसर्स अवेलेबल हो जाएंगे। एक तो वेरीफाई के लिए दिया ये आंसर है, एक हम m को एलिमिनेट कर सकते हैं, दूसरा इसको इधर ले जा करके कॉमन कर सकते हैं, और तीसरा अगर कुछ भी नहीं बोला गया है जस्ट सिंपल, तो हम लोग यहाँ से भी डेरिवेटिव फाइंड करके उसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं, तो डायरेक्टली भी सॉल्व किया जा सकता है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, जिसको हम ट्विस्ट करके कई वे में सॉल्व करके चेक करना चाहिए, और यही चीजें होती हैं जो एग्जाम में ट्विस्ट कर दिया जाता है और स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, बट इट इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस, इट इज फ्रॉम द सिलेबस। तो वहाँ सिलेबस से सॉल्व किया लिया गया, टेकन है सिलेबस से, तो उसको सॉल्व करना है और अच्छे से कंप्लीट करके क्लियर करना है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। तो हम लोग 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व करके यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं। हियर 5th क्वेश्चन इज y इक्वल टू a प्लस बी बाई एक्स, ये हमारा है क्वेश्चन, y इक्वल टू a प्लस बी अपॉन एक्स। तो ये अगर यहाँ पर क्वेश्चन है तो वेरीफाई क्या करना है, x इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू
प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। x इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये हमें वेरीफाई करके लाना है। और हमारे पास यहाँ पर a प्लस बी बाई एक्स है, दिस इज वैल्यू ऑफ y। तो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy upon dx, डेरिवेटिव ऑफ a is 0 and डेरिवेटिव ऑफ b by x is minus b upon x square। और डेरिवेटिव ऑफ y तो सबको पता है dy upon dx, अगर हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ये टर्म हमारे पास आ गया, मीन्स वैल्यू ऑफ dy by dx is minus b upon x square। तो टेकिंग x square on the left hand side we get x square into dy upon dx equal to minus b, x square into dy upon dx equal to minus b। Differentiating with respect to x we get derivative of x square is 2x into dy by dx plus x square as it is into derivative of dy by dx becomes d2y upon dx2, and b is a constant, so derivative of minus b becomes 0। तो यहाँ पर हमें माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं होती, ओनली 0। 0 is neither negative nor positive, so we should write derivative of minus b is 0। Therefore अब यहाँ पर हमारे पास देख लो कि इसमें कॉमन टर्म क्या है, 2 नहीं, यहाँ पर कॉमन टर्म है x और यहाँ भी x है, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई x वी गेट x इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ये हायर डेरिवेटिव और डिवाइड करने के बाद ये टर्म आता है तो इसको पहले लिखते हैं, और प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है तो यहाँ पर सेकंड टर्म बना देते हैं इसको, और इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x मल्टीप्लाइड बाय डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन कंप्लीटली क्लोज हो जाता है यहाँ पर, और यही इक्वेशन हमें वेरीफाई करना था, जो हमारा आंसर आ चुका है। तो ये स्टेप को यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऐसे ही स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए और ये टाइप को सॉल्यूशंस को पाने के लिए इस टाइप के और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए हमारे कमिंग वीडियोस को कंटिन्यू फॉलो करते रहिए। इफ यू आर न्यू व्यूअर ऑन माय चैनल, सो सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, you will get immediate all new notifications and new videos. Now see, continue next question, question number 6th। Here y equal to e raised to ax, y की वैल्यू क्या दी है, e to the power ax। Then verify x into dy by dx equal to y into log of y। अब देखो वेरी इंटरेस्टिंग, अब ये स्टूडेंट यहाँ पर बोल सकते हैं कि y log y, हाउ टू फाइंड log y log y, y log y तो यहाँ पर है ही नहीं, तो कैसे फाइंड करोगे। y इक्वल टू ई रेज टू ax, y इक्वल्स ई रेज टू ax। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में ही ट्रांसफर कर लेते हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ द लॉगरिथम log y इक्वल टू ax, एक्सपोनेंशियल है, देखो y इक्वल टू ई रेज टू ax, तो सबसे पहले दिस इंप्लाइज दैट log y इक्वल टू ax बाय डेफिनेशन। हमने इसको log में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हमको log y की रिक्वायरमेंट है, दिस इज द रीजन। जैसे भी मान लो कि हमें log y क्वेश्चन में है नहीं, वहां तो एक्सपोनेंशियल में है, तो हम log y कहाँ से लाएंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी करेंगे तो log y नहीं आने वाला। या तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ऐसा कर सकते हो तो भी यही आएगा log y इक्वल टू ax, या बाय डेफिनेशन y इक्वल टू ई रेज टू एक्स है तो log y इक्वल टू ax। ये हमारे पास एग्जैक्टली यहाँ पर टर्म्स आ जाते हैं। तो हम लोगों ने इसको कर दिया कंप्लीट बाय डेफिनेशन कि log y इक्वल टू ax। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ y इज 1 अपॉन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ax इज a इंटू 1, दैट इज a, 1 upon y into dy by dx equal to a into 1 becomes a। Therefore, लेकिन हमारे पास अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, हमें x इंटू डी वाई बाई डी एक्स लाना है, तो इसमें तो x है ही नहीं पूरे इक्वेशन में। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई x ऑन बोथ साइड्स वी गेट x अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखो x अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ax, x अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ax। ये हमने यहाँ पर वर्क कंप्लीट कर लिया। तो देयरफॉर x अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये ax की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ax, यहाँ पर आ जाइए, ax इक्वल टू log ऑफ y।
What is the value of x? Log of y. So x upon y into dy by dx equal to log of y from this equation. चाहे तो इसका इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर रख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट. तो दिस इज x इज log of y. अब हमें y से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए या y को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना चाहिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो देयरफॉर x into dy upon dx equal to y into log of y. Hence द डिफरेंशियल इक्वेशन इज वेरीफाइड. देखो यहाँ पर ये इक्वेशन वेरीफाई हो रहा है. तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू लॉग ऑफ वाई. एग्जैक्टली हमारा इक्वेशन आ चुका है. तो हम इस स्टेप को यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे, प्रोसेस को यहाँ पर क्लोज कर देंगे. और अगर मान लो कि हमको इसी में कुछ दूसरे आंसर की तरफ जाना है, अगर हमको अनदर आंसर्स फाइंड करने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे उसको. एक तो हमारा यहाँ पर डायरेक्ट डेरिवेटिव है जो कि मैंने यहाँ पर स्टार्ट भी कर दिया था, लेकिन ध्यान दिया मैंने कि यहाँ पर log ऑफ y है तो इसको चेंज करके ले लिया हूँ. देखो डायरेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू ए एक्स. तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए इंटू वाई. हमारे पास एक ऑप्शन ये भी था कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए वाई. इतना भी कंप्लीट हो जाता है, मीन्स dy बाई डी एक्स माइनस ए इंटू वाई इक्वल टू 0. तो एक आंसर तो ये भी है इसका, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है. दूसरा हमारे पास यहाँ पर भी है dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए वाई, जो कि यहाँ पर भी आया हुआ है. y की वैल्यू क्या है? ई रेज टू एक्स. तो हम लोग यहाँ y सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो अगर हम लोग लागरिथम्स में कंप्लीट कन्वर्ट कर चुके हैं, तो भी हमारे पास जो कमिंग आंसर है, जो कमिंग आंसर आने वाला है, वो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए इंटू वाई ही मिल रहा है इन बोथ द केसेस. लेकिन जो हमारा इक्वेशन यहाँ वेरीफाई करने के लिए दिया है, वो थोड़ा ट्विस्ट करके दिया गया कि स्टूडेंट को थोड़ा सा लॉजिक यूज करना पड़ेगा, थोड़ा अपने ब्रेन का यूज करें, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए क्वेश्चन को. तो इसके लिए यहाँ पर क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दिया गया और हमने यहाँ पर एक्स को मल्टीप्लाई कर लिया. तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर बन जाता है एक्स, क्योंकि ये ए था. तो दिस कंप्लीट्स बाई एक्स. तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या है? लॉग ऑफ वाई. तो टेकिंग वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम दिस इक्वेशन लॉग वाई एंड सब्स्टिट्यूटिंग हियर, तो we get x upon y into dy by dx equals log of y. तो अच्छे से यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. अब इसके बाद हम लोग जैसे इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? y. तो टेकिंग y ऑन द राइट हैंड साइड, तो टेकिंग इसको हम लोग क्या करते हैं? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ट्रांसफर कर लेते हैं. और जैसे ही ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पर होगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू लॉग ऑफ वाई. तो ये सब यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. और अभी सभी स्टूडेंट के बोर्ड एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक हैं, चाहे किसी भी बोर्ड के हों. और अभी मार्च एंड अप्रैल ये दोनों ही मंथ में एग्ज़ाम्स बोर्ड के होने वाले हैं. तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से सभी स्टूडेंट को प्रिपरेशन कर लेना है. और अगर कोई भी डाउट है सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ कमेंट ऑन लेटेस्ट वीडियो, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो पर कमेंट रहेगा तो हमें इमीडिएट मिल जाएगा. और ओल्ड वीडियोज़ पर कमेंट करके बताओगे अपने डाउट्स को. जब भी पूछना है वो चाहे किसी भी स्टैंडर्ड का अपलोड है, लेटेस्ट वीडियो में कमेंट करके बताइए कि हमें कौन से स्टैंडर्ड का कौन से क्वेश्चन में डाउट है. यू विल गेट द सोल्यूशन. तो डियर स्टूडेंट, इसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उनका सोल्यूशन पाने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस. थैंक यू सो मच.